Hello students, in our last class we studied about address calculation for one-dimensional array and two-dimensional array. Today we will see our next topic, which is basic operations on array. So the operations which can be performed on an array. Okay, the operations like traverse, insertion, deletion, search and update. Okay, so these are the basic operations. Some might be more operations like sorting and merge. Okay, that we will see later. Like the operations might be merge, sort. We will see that in later when they come. So the basic operations are basically traverse. Traverse means access all the elements one by one. So suppose this is your array, like 2 3 9 8 0. So traverse one by one, either in the forward direction or in the backward direction or in any way. That doesn't matter whether you go this direction or you go this direction or any other way you follow, but the elements should be traversed one by one and exactly once. Okay, this is basically called traversing an array. Means visit every element and visit only once. Next thing is insertion and element. Insertion means adds an element at the given index, and suppose this is our array 987 and I want to add an element at this location where 8 is. So what I will do, I will shift 8 here, I will shift 7 here, I will create one more box. So 7 will come here, 8 will come here, and our new element, suppose this is x, so it will come here. Okay, basically an integer, like suppose 0. So this is how we insert an element. And similarly we have deletion an element. We will see into the detail. Deletes an element at the given index. An index will be given and we have to delete that element at that index. Okay, similarly search an element using the given value. Now let us see. So we are saying that insertion at a given index only means, क्योंकि हमें क्या चाहिए कि हम चाहते हैं कि एक पोजीशन दी हुई हो हमको जहाँ पर हमको जो है इंसर्ट करना. ठीक है, उससे पहले लेट्स डिस्कस वन मोर थिंग, that basically there are two things. One is index, okay, and another is position. Okay, in the similar array we can discuss, like this is index 0 1 2 3 4. These are basically index, and similarly we have positions 1 2 3 4. So these are basically positions. So you can say that position is basically index plus 1. So जो भी इंडेक्स की लोकेशन है, जो इंडेक्स है उसमें अगर एक ऐड कर देंगे तो वो पोजीशन बता देगा. ठीक है, दो कॉन्सेप्ट है बेसिकली उन्होंने क्या रखा है, क्योंकि जनरली हम पोजीशन कब यूज़ करते हैं, जब एक जो ऐसा बंदा है जो प्रोग्रामिंग नहीं यूज़ करता, तो उसके लिए तो बेसिकली जो ये है फिफ्थ है, वो कौन सा है, थर्ड एलिमेंट ही है ना. वो थोड़ी ना कहेगा कि ये सेकेंड एलिमेंट है, कि इसकी इंडेक्स सेकेंड है, उसको तो समझ ही नहीं है. तो जनरली हम दो टर्मिनोलॉजी यहाँ यूज़ लेते हैं, एक तो इंडेक्स और एक पोजीशन. पोजीशन जो कि प्रोग्रामिंग के इन्वायरमेंट से नहीं है, तो उसको भी समझ में आ जाए कि हाँ भाई पोजीशन ये है, क्योंकि फाइनल रिजल्ट तो हम किसी यूज़र को ही शो करेंगे ना, किसी और को ही शो करते हैं. तो उसको नहीं पता कि भाई इंडेक्स क्या होती है, वो तो कहेगा कि भाई ये तो थर्ड पोजीशन पे है, आपने सेकेंड ही आंसर क्यों दे रखा है. तो इस तरह की चीज़ें हो सकती है. ठीक है, तो वी हैव टू टर्मिनोलॉजीज, वन इज़ इंडेक्स एंड वन इज़ पोजीशन. ओके, so let's now see. हम ये कह रहे हैं कि insert at an given index, तो हम यहाँ पर ये भी कह सकते हैं कि insert at a given position. ठीक है, तो हम यहाँ तो index भी कह सकते हैं और position भी कह सकते हैं, और सिमिलरली delete कह सकते हैं कि एक given index पर और या फिर given position पर. मतलब ये हमारा एक array है और इसमें सपोज ये 5 है
और ये 0 1 2 3 1 इसके इंडेक्स है, इस पर 1 इंडेक्स पर जो भी एलिमेंट है उसको डिलीट कर दो, या फिर इसको कह सकते हैं सेकंड पोजीशन पर जो इंडेक्स है उसको डिलीट कर दो, ठीक है। तो इसी तरह से हम नेक्स्ट देखते हैं सर्च एन एलिमेंट यूजिंग द गिवन वैल्यू। अच्छा, अब ये वैल्यू से क्यों सर्च कर रहे हैं, यहाँ इंडेक्स से क्यों नहीं सर्च कर रहे भाई? अगर मुझे कहा जाए कि थर्ड इंडेक्स का एलिमेंट है उसे सर्च करो, तो वो तो वैसे ही पता चल गया ना, जिसकी इंडेक्स थर्ड है वो तो A3 होगा, तो उसको सर्च क्या करना है, वो तो सीधा ही आ जाएगा हमारे पास, डायरेक्ट ही आ जाएगा कि अगर मुझे एक ऐसा एलिमेंट सर्च करना है जिसकी इंडेक्स 3 है तो उसमें सर्च तो कुछ करना ही नहीं है, मैं तो A3 लिखूंगा, डायरेक्ट वो एलिमेंट आ गया। सर्च तो उसे करना है कि पता नहीं है कि नहीं है, कहाँ पर है, तो एक वैल्यू को सर्च करा जाता है, इंडेक्स को और पोजीशन को सर्च नहीं करा जाता, ठीक है। तो अब है कि हमारा अपडेट एन एलिमेंट एट ए गिवन इंडेक्स, तो ये तो बहुत आसान है कि अपडेट करना है किसी भी एलिमेंट को, कि इस इंडेक्स पर जो भी एलिमेंट है उसको अपडेट कर दो। तो A1 को अगर अपडेट करना है तो ठीक है, अपडेट कर दो, बस वैल्यू 6 लिख दो, ये अपडेट हो गया। और भी देखते हैं हम कैसे कैसे ऑपरेशन है, क्या क्या इसमें चीज़ें होती है, वी विल सी वन बाय वन, ठीक है। यहाँ थोड़ा सा ये समझने की चीज़ थी कि इंडेक्स क्या होता है, पोजीशन क्या होती है, और सर्च हम इंडेक्स या पोजीशन से क्यों नहीं कर रहे, वैल्यू से क्यों सर्च कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर जो है इंसर्ट हम वैल्यू से क्यों नहीं करा रहे, कि देखो ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आपको देखना चाहिए, इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि 1 5 2 3 है, ठीक है। अगर मैं ये क्वेश्चन दूं कि एक एलिमेंट इंसर्ट करो 5 की पोजीशन पर, जहाँ 5 स्टोर है वहाँ पर एक एलिमेंट इंसर्ट करो, तो क्या हो जाएगा। सपोज मुझे एलिमेंट इंसर्ट करना है 4, तो क्या हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा 1, और ये 5 जो है बेसिकली इधर आ जाएगा, 2 इधर चला जाएगा, 3 इधर आ जाएगा, तो हम एक और क्रिएट करेंगे, ये ऐसे हो जाएगा और 5 की जगह 4 आ जाएगा, हो जाएगा ना, बिल्कुल ऐसा ही। लेकिन हम ऐसा कहते क्यों नहीं है कि भाई 5 की वैल्यू पर एलिमेंट इंसर्ट करो, हम इंडेक्स की ही क्यों बात कर रहे हैं कि इस इंडेक्स पर, क्यों? क्योंकि 5 जरूरी नहीं ना एक ही बार आए आयर में, हो सकता है 5 दूसरी बार भी आ जाए, हो सकता है 5 तीसरी बार भी आ जाए। हम ये तो नहीं कहते ना कि हमारे एरे के जो सारी एलिमेंट्स है वो यूनिक ही होते हैं, कि सब, और डुप्लीकेट एलिमेंट्स भी तो हो सकते हैं। तो उस केस में अगर मुझे कहा जाए कि 5 पे इंसर्ट करो, तो कौन से 5 पे इंसर्ट करूं भाई, और फिर 5 तो पहले सर्च भी करना पड़ेगा कहाँ पर है, ठीक है। तो कई चीज़ें हैं, सो वी विल नॉट गो टू द डिटेल्स ऑफ दैट। तो आप यहाँ पर बेसिक आइडिया यहाँ पर अब लगा सकते हैं कि हम जो इंसर्ट और डिलीट की बात कर रहे हैं वो बेसिकली हमको इंडेक्स दी होगी या फिर पोजीशन दी होगी, कि उस इंडेक्स या उस पोजीशन पर जाकर आपको इंसर्ट या डिलीट करना है। सर्च करना है तो हम वैल्यू से ही सर्च करेंगे, इंडेक्स और पोजीशन से तो सर्च होता ही नहीं, तो डायरेक्ट ही हमको पता चल गया कि क्या है। इसी तरह से अपडेट होता है। तो लेट अस सी द ट्रैवर्स फर्स्ट, एक्सेस ऑल द एलिमेंट्स वन बाय वन एंड एग्जैक्टली वंस, ठीक है। अब देखो ये एक एल्गोरिथम है जो बुक में दे रखा है, तो इसलिए मैंने वहाँ से कॉपी पेस्ट कर लिया है, इसमें कोई मॉडिफाई नहीं करा है मैंने, ठीक है। हम अपनी तरह से चीज़ें चेंज कर सकते हैं, बट इट इज़ नॉट एडवाइज्ड, ठीक है। क्योंकि कॉपी चेक करने वाले टीचर्स कैसे चेक करेंगे, वो बुक में से मैच करके भी चेक कर सकते हैं, तो हमें उन सारी पॉसिबिलिटीज़ का ध्यान में रखना है, और वो ध्यान में रखते हुए ही हम बुक की चीज़ों को कॉपी पेस्ट करने की कोशिश करेंगे बेसिकली। क्योंकि कोई भी एल्गोरिथम, इफ़ आई ट्राई टू राइट माई एल्गोरिथम, इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट फॉर एनी पर्सन टू डिटेक्ट वेदर इट इज़ करेक्ट और नॉट। तो इसलिए एडवाइजेबल यही है कि बुक से ही हम लेकर चलेंगे चीज़ों को। तो ये बेसिकली एल्गोरिथम है। थोड़ा बहुत मॉडिफिकेशन कैन बी डन, बट नॉट अ गुड मॉडिफिकेशन, गुड अमाउंट ऑफ मॉडिफिकेशन, और या कहें दे कि लार्ज अमाउंट ऑफ मॉडिफिकेशन इज़ नॉट रिकमेंडेड, ठीक है। तो एल्गोरिथम सीधा है कि रिपीट फॉर आई इक्वल टू LB to UB। देखो ये मेरा एरे है, बेसिकली हम पहले ही बात कर चुके हैं कि ये लोअर बाउंड होता है और जो लास्ट वाला होता है ये अपर बाउंड होता है। तो व्हाट इट इज़ सेइंग, द रिपीट फॉर आई इक्वल टू LB to UB, कि मतलब ये मैं एक वेरिएबल लूँगा i और यहाँ से LB से चलूँगा और UB तक जाऊँगा, मतलब कि सारे एलिमेंट्स को ट्रैवर्स करता हुआ जाऊँगा और हर पर जो है एक प्रोसेस अप्लाई कर दूँगा, ठीक है। ये लिखा हुआ है, बेसिकली मुझे क्या करना है, ट्रैवर्स करना है बस। प्रोसेस क्या होगा यहाँ पर, बेसिकली प्रिंट करूँगा मैं बस। एल्गोरिथम से ज़्यादा समझ में नहीं आ रहा है, यहाँ पर थोड़ा सा कन्फ्यूज़न है कि प्रोसेस क्या है। तो प्रोसेस देखो कुछ भी हो सकता है, आप ये समझ सकते हैं कि जो प्रोसेस है ये प्रिंट एफ हो सकता है, प्रिंट एफ AI। तो ये जो लाइन है बेसिकली ये हो जाएगी, ठीक है।
तो ये हो जाएगी। लेकिन आप ज़्यादा चेंज करने की कोशिश मत करिए, इसको अप्लाई प्रोसेस टू AI ही करिए बोर्ड में। नाउ एंड ऑफ फॉर लूप और ये एग्जिट, ठीक है बस। नाउ वी सी द प्रोग्राम, जिसको हम अपनी तरीके से भी लिख सकते हैं कि वो कैसे वर्क करता है। देखो, तो ये मेरा जो है एक एरे है, फर्स्ट इंडेक्स 0 है, लास्ट इंडेक्स आपको पता है साइज -1 होती है, ठीक है, क्योंकि 0 से स्टार्ट हो रही, 1 से स्टार्ट हो रही तो साइज तक होती। तो I इज इक्वल टू 0 से चलना है साइज -1 तक और प्लस प्लस आई है, और हर बार चलना है और प्रिंट कर देना है AI को, वही चीज़ हो गई ना। देखो, और ये क्या करेगा बेसिकली, ये सारी जैसे अगर इसमें वैल्यूज है 4 5 3 2 9, तो ये क्या करेगा, I इक्वल टू 0 इस पर जाएगा, इसको प्रिंट कर देगा, फिर I इक्वल टू 5 5 को प्रिंट कर देगा, फिर 3 को कर देगा, फिर 2 को कर देगा, फिर 9 को प्रिंट कर देगा। तो हमारा आंसर जो है इस तरह का आ जाएगा। अगर मैंने यहाँ पर \n भी लगा रखा है तो 3 2 9, ठीक है। और अगर मैंने \n नहीं लगाया तो ये क्या करेगा, 4 5 3 2 9 ये प्रिंट कर देगा। और \n लगा दूंगा तो 4 5 3 2 9 ऐसे प्रिंट कर देगा, ठीक है। तो ये है, बहुत सिंपल है, हमने फॉर लूप देख चुके हैं, नेस्टेड लूप्स भी दे सकते हैं, तो ये बहुत इजी होगा, आप ट्राई करें अपने आप से, ठीक है। नाउ लेट अस मूव अब देखिए यहाँ पर जो है I लेस देन, बेसिकली यहाँ पर इक्वल टू भी था, गलती से नहीं लिखा मैंने। सो सपोज मैं इसमें ये भी कर सकता हूँ कि I लेस देन इक्वल टू साइज -1 की जगह I लेस देन साइज भी कर सकता हूँ। दिस थिंग ऑल्सो वी हैव डिस्कस, ठीक है, ये भी कर सकता हूँ। डिपेंड करता है कि मुझे क्या सूटेबल लग रहा है, ठीक है, मैं किस तरह से सोचता हूँ। तो ये भी कर सकता हूँ और ये भी कर सकता हूँ, दोनों का मतलब एक ही है, ठीक है। प्रिफर वही है कि जो बुक में लिखा हुआ है ना, आप उसी को ही थोड़ा करने की कोशिश करिए, क्योंकि टीचर्स पे बहुत कुछ डिपेंड करता है, वो जो कॉपी चेक करेंगे बोर्ड में, तो हम रिस्क यहाँ पर नहीं ले सकते, ठीक है। सो नाउ वी मूव एंड सी दैट राइट अ प्रोग्राम टू ट्रैवर्स अ 2D एरे। अब देखो ट्रैवर्स क्या, हमने printf देखा, हमने स्कैन देखा, तो आप ये समझिए कि जो प्रिंट करने का जो था ना हमारा नेस्टेड लूप, वही बेसिकली ट्रैवर्स करने के लिए भी यूज़ में होता है। तो वही हमारा 2D एरे है, AMN, M नंबर ऑफ रोज है, N नंबर ऑफ कॉलम्स है हमारे, और वही I इक्वल टू 0, I लेस देन M, यहाँ लेस देन M की जगह I लेस देन इक्वल टू M -1 भी कर सकते हो, और J लेस देन N की जगह आप J लेस देन इक्वल टू N-1 भी कर सकते हो। वही है, नेस्टेड लूप है, बिल्कुल वही है, कोई इसमें नहीं %d A ऑफ ij, तो इसमें कुछ है ही नहीं, एग्जैक्टली वही चीज़ है। तो ये ट्रैवर्स बेसिकली जो हमने नेस्टेड लूप पढ़ा था ना, स्कैन किया था फिर प्रिंट किया था, तो एग्जैक्टली वही है, ट्रैवर्स उसी को ही कह रहे हैं, क्योंकि आप हर एलिमेंट को तो एक्सेस कर ही रहे हो ना। अब ऑपरेशन आप क्या करते हो उसके ऊपर, वो अलग चीज़ है। आप स्कैन कर लो तो भी ट्रैवर्स ही एक तरह से, आप प्रिंट कर लोगे तो भी ट्रैवर्स ही है। तो ऑपरेशन जो है अलग अलग हो सकता है, उस पर अलग बात है। बाकी ये है कि आपने हर एलिमेंट को एक्सेस किया है, अब आप ऑपरेशन क्या करोगे, दैट इज अ डिफरेंट थिंग, ठीक है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक हमारा जो आएगा इंसर्शन, ठीक है। सो वी सी दैट इनटू द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू फॉर ट्राई योर सेल्फ। अगर आप ट्राई नहीं करेंगे प्रोग्रामिंग को तो ये नहीं आने वाली है। ट्राई करिए, प्रोग्राम बनाइए, कुछ